Welcome children. Today's worksheet number 19, the fundamental unit of life. Jigyasa Didi, we know that the cell is basic functional unit of life. But what are the life processes and how does cell perform them? In last worksheet, we have discussed about what is cell and why it is called functional and structural unit of life. But what are the life processes? Today we will discuss what are the life processes and how does a cell perform them. As you know, all living organisms possess special traits. Special traits कौन से होते हैं? Like they grow, excrete, they need food, inhale, exhale means they respire or respiration, or it may be reproduction, etc. All these necessary activities are known as life processes. तो life processes कौन से हैं? वो necessary activities जो हर living organisms में होते हैं. Growth है, excretion, nutrition, respiration, reproduction, etc. All these activities are known as life processes. These are performed in every living cell by exchange of necessary substances. सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट. सेल के पास क्या होते हैं? सेल के अंदर स्पेशल कंपोनेंट्स एंड दीज स्पेशल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनलीज. इनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनलीज. एंड एवरी ऑर्गेनली परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. एवरी ऑर्गेनली परफॉर्म एक सारे अलग अलग ऑर्गेनलीज जो हैं वो एक विशिष्ट कार्य स्पेसिफिक टास्क करते हैं. सेल इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनलीज. ऑर्गेनलीज की प्रेजेंस के कारण ही सेल में सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो परफॉर्म हो पाते हैं. एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. Every cell has three main parts. What are these? Plasma membrane, nucleus and cytoplasm. These help the cell to perform various activities. Now Gyan is asking from Didi, what is plasma or cell membrane and what is its function? Plasma membrane क्या होती है? Plasma membrane is the outermost covering of the cell. What is plasma membrane? It is outermost covering of the cell. Plasma membrane allows the entry and exit of some necessary material in and out of the cell. Plasma membrane का क्या काम है? Necessary materials को सेल के अंदर और बाहर जाने देना. Only certain material can pass through it. Means from plasma membrane only certain material can pass through. That is why it is called selectively permeable membrane. Why it is called selectively permeable membrane? Because only certain material can pass through it. The necessary materials कौन से हैं? Oxygen, carbon dioxide, nutrients, water, etc. These are the essential materials which can pass through plasma membrane. These materials can enter or exit cell through plasma membrane by the process of diffusion and osmosis. Diffusion और osmosis process के through ये necessary materials सेल के अंदर बाहर आ जा सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज टर्म्ड एज डिफ्यूज़न. जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं या पार्टिकल्स जो हैं उनका मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज डिफ्यूज़न. नाउ व्हाट इज़ ऑस्मोसिस?
ऑस्मोसिस क्या होती है? ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब movement of water molecules through cell membrane, it means movement of water molecules through cell membrane from higher concentration to lower concentration is called osmosis. Now, effect of concentration of solution on a cell. concentration of a solution का सेल पर क्या इफेक्ट होता है? on the basis of concentration of water, solution is of 3 types. solution कितनी तरह का होता है? 3 टाइप का। किस पर बेस है ये बेस है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पर जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशंस को हमने कितनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया है? 3 कैटेगरीज में। तो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल। अगर सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा है या अधिक है तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं तो सेल स्वेल्स अप, यानी सेल जो है वो फूल जाती है, इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जाने लगते हैं और जिससे क्या होता है? सेल फूल जाती है। तो ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को रखते हैं तो सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, इट मीन्स वो फूल जाती है। नाउ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन एंड सेल इज सेम, मीन्स सेल के अंदर और जिस सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है उन दोनों में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेम होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सेम होने के कारण क्या होता है? नो चेंज इन शेप, नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड नो चेंज इन शेप। सेल के शेप में कोई चेंज नहीं होता। थर्ड वन इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बेटा ध्यान से सुनना है, ये हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक एंड थर्ड वन इज़ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? सॉल्यूशन दैट हैव लेस वाटर देन सेल। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन सेल के कंपैरिजन में लेस है, कम है, तो वो सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेल श्रिंक्स। इस सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। डिक्रीज इन साइज ड्यू टू एक्स ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना। तो सेल जो है श्रिंक हो जाती है। सिमिलरली द soluble substance diffuse inside the cell with water। यहाँ पर आपको 3 पिक्चर दिए हुए हैं जिसमें सेल को कहाँ रखा गया है? फर्स्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल इज इक्वल, सो नो चेंज इन शेप। शेप में कोई चेंज नहीं होता, ना वो फूलती है और ना वो श्रिंक होती है। सेकेंड इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर और लार्जर इज़ हायर इन आउटर सॉल्यूशन। सो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होने से क्या होता है? एंडोस्मोसिस। ये वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर होने लगते हैं जिससे क्या होता है? सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
तो जब हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं इट सेल्स अप, फूल जाती है ये। एंड लास्ट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि एक्स ऑस्मोसिस मीन्स सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ होता है, आउटसाइड, बाहर की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने लगते हैं। तो क्या हो जाता है कि सेल जो है श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है। यह हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो प्लांट सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। सेल वॉल क्या होती है? इट्स थिक वॉल्ड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक वॉल होती है, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। इट इज प्रेजेंट इन द plant cell only, not in animal cell. When plant cell loses water through osmosis, the cell content gets shrinked away from the cell wall along with plasma membrane. When plant cell loses water, अगर प्लांट सेल से वाटर लॉस होता है थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू, तो क्या होता है, सेल कंटेंट जो है वो श्रिंक हो जाता है अलोंग विथ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को लेकर के साथ ये सेल कंटेंट श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। ये यहाँ पर देखिए इस वाले चित्र में, ये जो आउटर ये कवरिंग है, दिस इज सेल वॉल, ये सेल वॉल है, और ये यहाँ पर ये जो कवरिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ सेल कंटेंट पूरा श्रिंक हो जाता है। यहाँ पर ऑर्डिनरी सेल है, यहाँ आउटर सरफेस क्या है इसका, आउटर कवरिंग सेल वॉल, और उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर श्रिंकिंग स्टार्ट हो गया है। श्रिंकिंग स्टार्ट होने में ये जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ये सेल वॉल है, और सेल मेम्ब्रेन और सेल कंटेंट श्रिंक होता जा रहा है। इस पिक्चर में और क्लियर है। और यहाँ पर ये देखिए ये जो पार्ट है ये सेल है विथ सेल कंटेंट विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल कंटेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर श्रिंक हो जाता है। कब श्रिंक हो जाता है? व्हेन प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अगर प्लांट सेल वाटर लॉस करती है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो ये प्रोसेस होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल कंटेंट श्रिंक हो जाते हैं, और ये आउटर साइड में जो आपको लेयर दिख रही है ये क्या है, सेल वॉल। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। प्लांट सेल में होती है ये। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। What is the importance of cell membrane? Cell membrane क्या होती है? Cell membrane और plasma membrane is selectively permeable membrane. Why it is called selectively permeable membrane? Because only certain materials can pass through from cell membrane. Therefore, it is called selectively permeable membrane. And what is cell membrane? This is outermost covering of the cell. Plasma membrane allows the entry and exit of some necessary material in and out of the cell. ये आपकी इम्पोर्टेंस है, and this is the answer of first question. Now second question. Explain plasmolysis with a diagram. ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपको लिखना है। कैसे लिखना है? व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? Plasmolysis
When plant cell loses water through osmosis, the cell content gets shrinked away from the cell wall along with plasma membrane. सेल वॉल से अलग हो जाता है ये. और कौन कौन श्रिंक होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल कंटेंट. दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस. ये आपको इनके डायग्राम बनाने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमिएबल. परमिएबल कौन सा पार्ट होता है सेल का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Next question is what changes will occur in resins and RBC when they are placed inside the hypotonic solution. जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रेजिन यानी किशमिश को रखेंगे या रेड ब्लड कार्पोसल्स को, रेड ब्लड सेल को रखेंगे तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. क्या होगा? व्हाट वुड हैपन? इट विल इंक्रीज इट्स साइज. रेजिन भी फूल जाएगी और आरबीसी जो है या रेड ब्लड कार्पोसल्स ये भी क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज इन साइज when we put in the hypotonic solution. Thanks for watching.